Hello students, how are you? I hope you all are good at your home. So today we are going to read the new lesson in 4th class, and the name of the lesson is The Television Chocolate Room. So students, this is a very interesting story. So listen it carefully and I'll explain you in English and Hindi both. Okay, so listen it carefully and open your book and take out page 65. So, first of all, I'll introduce the author of this lesson. So, The Television Chocolate Factory is an excerpt from a novel Charlie and the Chocolate Factory, written by renowned British author Roald Dahl, who wrote several books for both children and adults. He is well known for his imaginative stories. His famous work include Matilda, the BFG and the Fantastic Mr. Fox. Charlie and the Chocolate is his most famous book. So let us come to the point, and first of all, I'll tell you the short summary of the story. The story revolves around the adventure of the young boy Charlie Bucket inside the biggest chocolate factory of the world. In his hometown, it was owned by an eccentric chocolatier, Willy Wonka, and he wanted hair for his factory. And what do you mean by hair? That is throne, who could take care of his business and expand it with its innovative idea. To get his hair, he hides golden tickets and the 5 chocolates and announces that whoever get it will get the chance to visit the chocolate factory and then send chocolate to all over the world. Luckily, Charlie Bucket and other 4 more children got the golden ticket. They were Augustus Gloop, a very fat and a greedy boy; Veruca Salt, who is a spoiled child, demands everything she wants; Violet Beaugarde, a girl who chews gum all the time; and Mike TV, who loves watching television. These children went on tour to Chocolate Factory with the guardians. When they reach Chocolate Factory, Mr. Wonka shows the children around and also take them to the chocolate room. Gradually, 3 children were eliminated one by one. Only Mike TV and Charlie Bucket was left when they reached to the testing room. TV family, together with Charlie and Grandpa Joe, stepped into a dazzling bright room, and Mr. Wonka get a pair of dark glasses. Each of them show that they can easily look around with in comfort. There they saw a long narrow room which had nothing except a far end and an army of Oompa Loompa walking. Mr. Wonka explained them at his testing room for his greatest invention, television chocolate. Everyone was curious to know what is television chocolate. You also wanted to know them? Okay, so I'll take you inside the room to show what it is, but quietly, otherwise, everything will vanish. Now, students, I will tell you this story in English so that you can easily understand. Okay? And if you want to know what happened at last, you can see the movie of this television chocolate room in Hindi also. It in YouTube you can also search this movie. ओके आपको इजीली है ना यूट्यूब में इसकी जो पूरी स्टोरी है हिंदी में भी मिल जाएगी और इंग्लिश में भी मिल जाएगी ओके सो लेट्स गो टू आवर बुक हम अपनी बुक में चले ओके सो ओपन द पेज नंबर 65 so, Willy Wonka, the owner of the largest and the most famous chocolate factory in the world, wants to find and head for his factory. विली वोंका नाम का एक व्यक्ति था जो बहुत ही बड़ी और फेमस चॉकलेट फैक्ट्री का मालिक था और वो क्या ढूंढना चाहता था ही वॉन्ट्स टू फाइंड एन हेयर फॉर हिज फैक्ट्री अपनी फैक्ट्री का एक हेयर मीन्स उत्तराधिकारी ढूंढना चाहता था कि उसके बाद उस फैक्ट्री का कौन ध्यान रखे सो ही हाइड्स गोल्डन टिकट्स इन 5 चॉकलेट्स तो वो क्या करता है गोल्डन टिकट्स में 5 चॉकलेट्स में गोल्डन टिकट्स को छुपा देता है एंड सेंड्स देम ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया में भेज देता है द 5 चिल्ड्रन हु फाइंड दिस टिकट्स
जो 5 बच्चे जिनको वो टिकट्स मिले एंड देयर गार्जियंस, गार्जियंस मीन्स पीपल यूजुअली नॉट पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हु लुक आफ्टर अ चाइल्ड, न तो पेरेंट्स न ग्रैंड पेरेंट्स जो उन बच्चों का ध्यान रखते हैं, तो उनके साथ आ गए गो ऑन अ टूर ऑफ वोंकास फेबुलस चॉकलेट फैक्ट्री। तो जो 5 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, जो इनके जिन्हें गोल्डन टिकट्स मिली थी, वो अपनी गार्जियंस के साथ आए और वोंका की बड़ी सी फैक्ट्री में आए। He shows them his latest inventions and discuss how he comes up with his special ideas for making new chocolates. वो विली वोंका उनको बताता है उनकी जो पुरानी जो लेटेस्ट उनकी जो भी इन्वेंशंस है, इन्वेंशन यानी जो भी वस्तु उसने पहली बार बनाई थी उसने सब कुछ बताया उसको, और वो भी ये भी बताता है कि उसने कैसे सब किया। बाय द टाइम द ग्रुप रिचेस द फाइनल टेस्टिंग रूम, और उसी वक्त घूमते घूमते टूर पर जाते जाते फाइनल टेस्टिंग रूम में जब पहुंचते हैं तो ओनली 2 ऑफ द चिल्ड्रन, सिर्फ 2 ही बच्चे रहते हैं। 3 बच्चे तो एलिमिनेट यानी निकाले जाते हैं। माइक टीवी एंड चार्ली बकेट रिमेन, सिर्फ 2 ही बच्चे रहते हैं, माइक टीवी एंड चार्ली बकेट। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। उसके बाद क्या होता है टेस्टिंग रूम में? द टीवी फैमिली together with Charlie and Grandpa Joe stepped into a dazzling bright room. टीवी फैमिली और जो चार्ली और उसके ग्रैंडफादर साथ में थे, वो लोग क्या करते हैं, एक बहुत से ब्राइट रूम में आ जाते हैं। डैजलिंग यानी बहुत ही ब्राइट रूम होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट होती है। मिस्टर वोंका हैंडेड ईच ऑफ देम अ पेयर ऑफ अ डार्क ग्लासेस एंड सेड पुट दिस ऑन क्विक, दिस लाइट कुड ब्लाइंड यू। मिस्टर वोंका ने उन सभी को एक डार्क ग्लासेस दिए, डार्क ग्लासेस मीन्स चश्मे दिए ब्लैक कलर के, और उनको कहा कि जल्दी से पहन लो नहीं तो इस लाइट की वजह से तुम अंधे हो सकते हो। As soon as Charlie had his dark glasses on, he was able to look around him in comfort. जैसे चार्ली ने वह डार्क ग्लासेस पहने तो वो आराम से चारों तरफ देख सकता था। He saw a long narrow room with white walls and floors. और उसने एक बहुत लंबा रूम देखा, लॉन्ग बहुत ही बड़ा रूम था, नैरो रूम था जिसकी वाइट वॉल्स थी, फ्लोर्स थे, एंड द रूम वॉज कम्प्लीटली बेयर एक्सेप्ट एट द फार एंड्स। और वो रूम पूरा खाली था, बेयर मीन्स खाली। सो एट वन ऑफ दिस एंड्स, उसके आखिरी एक हिस्से में क्या था, देयर वॉज एन इनॉर्मस कैमरा ऑन व्हील्स, एक बहुत बड़ा कैमरा था जो पहियों पे था। एन आर्मी ऑफ उम्पा लुम्पास wearing bright red space suits. एन आर्मी, जो आर्मी थी उम्पा लुम्पा की, उन लोगों ने क्या पहन रखा था, ब्राइट रेड कलर के स्पेस सूट्स पहन रखे थे। वॉज वर्किंग देयर, वहाँ पे काम कर रहे थे। ऑयलिंग इट्स जॉइंट्स एंड क्लीनिंग द लेंस, अपने जॉइंट्स को ऑयल कर रहे थे। ठीक है, ऑयलिंग जॉइंट्स मीन्स एडिंग ऑयल टू द जॉइंट्स सो दैट द मेटल पार्ट्स डिड नॉट रस्ट एंड एंटायर कैमरा वर्क ब्यूटीफुली। कैमरा में क्या करते, ऑयलिंग कर रहे थे ताकि मेटल पार्ट्स रस्ट ना हो और वो कैमरा अच्छे से चल सके। और उम्पा लुम्पा कौन है? उम्पा लुम्पा आर अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम इमेजिनरी कंट्री, एक इमेजिनरी कंट्री की जो पीपल है, ग्रुप ऑफ पीपल है, कंट्री ऑफ द लुम्पा लैंड, हु लव सिंगिंग एंड डांसिंग, जिनको सिंगिंग और डांसिंग बहुत अच्छा लगता है। ओके, मेड अप बाय रोल्ड डाल, इसमें ये ऑथर ऐसा कहते हैं। ओके, सो दे वर ऑयलिंग इट्स जॉइंट्स एंड क्लीनिंग द लेंस, लेंस को क्लीन कर रहे थे, साफ कर रहे थे इन कंप्लीट साइलेंस, एकदम क्वाइटली कर रहे थे। एट द अदर एंड ऑफ द रूम अनदर उम्पा लुम्पा ऑल्सो इज इन अ स्पेस सूट वॉज सिटिंग एट अ ब्लैक टेबल गेजिंग एट अ वेरी लार्ज टेलीविजन स्क्रीन। दूसरी तरफ एक और उम्पा लुम्पा बैठा था स्पेस सूट में एंड वॉज सिटिंग एट अ ब्लैक टेबल पे बैठा था एंड गेजिंग मीन्स घूर रहा था, उसको देख रहा था। एट अ वेरी लार्ज टेलीविजन स्क्रीन, बहुत बड़ी टेलीविजन स्क्रीन पे उसे देख रहा था। वॉचिंग दैम चार्ली हैड अ वैग सेंस ऑफ डेंजर, उनको देख कर चार्ली तो बहुत ही दंग रह गया। वैग मीन्स अनसर्टन, चौंक गया कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। Mr. Wonka suddenly interrupted his thoughts. This is the testing room for my greatest invention, television chocolate, he cried. मिस्टर वोंका ने कहा कि ये मेरा टेस्टिंग रूम है मेरी ग्रेटेस्ट इन्वेंशन टेलीविज़न चॉकलेट के लिए।
What is television chocolate? Asked Mike TV. Mike TV ने पूछा ये टेलीविजन चॉकलेट क्या है? Don't interrupt me, child, said मिस्टर वोंका. मिस्टर वोंका ने कहा कि मुझे इंटरप्ट मत करो, डिस्टर्ब मत करो. It works by television. ये टेलीविज़न से चलता है. Now I don't like television myself. मुझे भी टेलीविज़न अच्छा नहीं लगता. But I know that children seem to watch it all day. लेकिन मुझे पता है कि बच्चे तो सारा दिन ही टीवी देखते रहते हैं. That's me, said Mike. तो माइक कहता है कि हाँ ये तो मैं ही हूँ. क्वाइट said his father. उसके फादर ने कहा चुप हो जाओ. थैंक यू said मिस्टर वोंका. मिस्टर वोंका ने कहा थैंक यू. आई शैल नाउ टेल यू हाउ एन ऑर्डिनरी टेलीविज़न वर्क्स. अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सामान्य टेलीविज़न कैसे वर्क करता है. ही कंटिन्यूड. एट वन एंड एक तरफ क्या होता है कि पिक्चर इज टेकन विद अ लार्ज कैमरा. एक पिक्चर लिया जाता है बड़े से कैमरा से. देन द फोटोग्राफ इज ब्रोकन अप इनटू मिलियन टाइनी पीसेस. फिर उस फोटोग्राफ के बहुत सारे पीसेस किए जाते हैं, मिलियन पीसेस किए जाते हैं. एंड शॉट अप इनटू द स्काई बाय इलेक्ट्रिसिटी. और उसको ऊपर आसमान में इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा शॉट किया जाता है, फेंका जाता है. सो हाउ डू दे रीच आवर टेलीविज़न? आज चार्ली. तो चार्ली ने पूछा कि वो हमारे टेलीविज़न तक कैसे पहुंचते हैं. Well, they hit the antenna on your roof and then flashed down the wire to the back of the television set. Antenna, ANTENNA. What is antenna? A rod or wire used to send or receive TV signals. आपके घर में एंटीना तो होगा ही. ओके, टीवी किससे चलता है? बिना एंटीना के नहीं चल सकता. तो वो कहते हैं, मिस्टर वोंका कहते हैं कि दे हिट द एंटीना. और वो जो बहुत सारे पीसेस होते हैं फोटोग्राफ्स के, वो एंटीना को हिट करते हैं ऑन योर रूफ एंड देन फ्लैश डाउन. और फिर फ्लैश मीन्स लाइट्स पड़ती है उसके ऊपर से. मूव वेरी क्विकली, बहुत जल्दी से वो मूव करते हैं. एंड डाउन टू द वायर की तरफ जाते हैं. एंड टू द बैक ऑफ द टेलीविज़न सेट, और टेलीविज़न सेट से कनेक्ट हो जाते हैं. व्हेन दे रीच इनसाइड, जब वो अंदर चले जाते हैं, द टाइनी पीसेस जिगल एंड जॉगल टिल दे फिट टुगेदर लाइक पीसीज ऑफ जिगसॉ पजल. और वो जब अंदर जाते हैं टाइनी पीसीज, तो बहुत देर तक जिगल जागल करते हैं जब तक कि वो जिगसॉ पजल सॉल्व नहीं हो जाता. बहुत सारे पीसेस होते हैं वो इसके अंदर सेट हो जाते हैं. दैट्स हाउ द फोटोग्राफ अपीयर्स ऑन द स्क्रीन. और उसके बाद ही वो स्क्रीन पे फोटोग्राफ दिखाई देता है. दैट इजंट एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स, माइक सेड. माइक कहता है क्या ये ऐसे ही वर्क करता है? You are a nice boy, Mr. Wonka said, but you talk too much. Mr. Wonka कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे बच्चे, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो. Now then, the very first time I saw an ordinary television working. जब पहली बार ये टेलीविज़न वर्क को देखा, ऑर्डिनरी टेलीविज़न को वर्किंग करते हुए देखा, आई हैड एन आइडिया. मुझे भी एक आइडिया आ गया. इफ़ अ फोटोग्राफ कुड बी ब्रोकन इनटू मिलियन ऑफ पीसेज. अगर फोटोग्राफ को बहुत सारे टुकड़ों में, बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीसेज उसके कर देते हैं, एंड देन पुट टुगेदर, उसको रखा जाता है. कुडंट आई ऑल्सो सेंड अ रियल बार ऑफ चॉकलेट विजिंग थ्रू द एयर इन टाइनी पीसेस एंड then put the pieces together at the other end all ready to be eaten. जैसे इस फोटोग्राफ के बहुत सारे टुकड़े करके ऊपर फेंका जाता है, तो क्या मैं इस बहुत बड़ी चॉकलेट लाकर उसको भी आसमान में हवा में फेंकूं टाइनी पीसेस करके, और फिर वापस नीचे तक आ जाए और खाने लायक हो जाए? तो इम्पॉसिबल, सैड माइक टीवी. माइक टीवी ने कहा असंभव. वेल वॉच दिस, क्राइड मिस्टर वोंका. मिस्टर वोंका ने कहा चलो इसको देखो. ब्रिंग इन द चॉकलेट प्लीज, ही नॉडेड. तो मिस्टर वोंका ने उम्पा लुम्पा को कहा कि जाओ एक बड़ी सी चॉकलेट लेके आ जाओ. इमीडिएटली 6 उम्पा लुम्पास मार्च फॉरवर्ड. तुरंत ही 6 उम्पा लुम्पा आए, और वो क्या लेके आए? कैरिंग द मोस्ट इनॉर्मस बार ऑफ चॉकलेट चार्ली हैड एवर सीन. और 6 उम्पा लुम्पास एक बहुत बड़ी चॉकलेट बार लेके आए, और ऐसी चॉकलेट चार्ली ने कभी नहीं देखी थी. इट इज़ ह्यूज, मिस्टर वोंका एक्सप्लेन. मिस्टर वोंका ने कहा ये बहुत बड़ी है. बिकॉज वेन एवर यू सेंड समथिंग बाय टेलीविज़न इट ऑलवेज श्रिंक्स इन साइज. क्योंकि वो कहते हैं कि जब भी आप कोई भी वस्तु टेलीविज़न में भेजते हैं, टेलीविज़न के द्वारा भेजते हैं, इट ऑलवेज श्रिंक्स इन साइज, वो हमेशा साइज़ में छोटा हो जाता है. व्हेन यू फोटोग्राफ अ बिग मैन ही इज टॉल एज अ पेंसिल ऑन द स्क्रीन, इजंट ही. जब आप किसी व्यक्ति को टीवी में देखते हो तो आपके पेंसिल के साइज़ का होता है ना, तो व्यक्ति क्या लगता है? टीवी में छोटा लगता है. ही वेव टू द उम्पा लुम्पा, हियर वी गो. देन
तो कहते हैं चलो हम आगे चलते हैं. Then it suddenly shrinked. No, no, stop. For Mike TV was standing very close to the camera. तो उसने He waved to the Oompa Loompas, here we go then he suddenly shrieked और वो अचानक shrink हो जाता है. No, no और वो कहता है stop for Mike TV क्योंकि Mike TV was standing very close to camera. कैमरा के पास में खड़ा था ना, तो उसने कहा कि पीछे आ जाओ. The rays coming out of it could break you up into a million tiny pieces in 1 second. वो कहता है कि जो इसकी जो किरणें आती हैं वो तुम्हें एक ही सेकंड में तुम्हारे मिलियन पीसेस कर देंगे. दैट्स वाई द लुम्पा लुम्पाज आर वियरिंग स्पेस सूट्स. इसलिए ही तो लुम्पा लुम्पा ये स्पेस सूट्स पहनते हैं और ये सूट्स उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज नंबर 67. So, TV moved away as one Oompa Loompa pulled a large switch down. There was a blinding flash. TV moved away. TV थोड़ा सा दूर हो गया क्योंकि Oompa Loompa pulled a large switch down. Oompa Loompa ने एक बड़े से स्विच को पुल किया था और there was a blinding flash. Blinding flash means an extremely bright burst of light when a camera button is pressed. जब कैमरा बटन को प्रेस किया जाता है तो बहुत लाइट प्रेजेंट होती है, फ्लैश पड़ता है. जैसे कैमरे से फ़ोटो कैसे खींची जाती है जब एक फ्लैश नहीं पड़ता, वैसे ही उस वक्त वहाँ पे हुआ. द चॉकलेट इज़ गॉन. जैसे ही वो फ्लैश पड़ा तो चॉकलेट गायब हो गई. शाउटेड ग्रैंडपा जो. ग्रैंडपा जो ने कहा अरे चॉकलेट इज़ गॉन. वेविंग हिज आर्म्स. ही वॉज क्वाइट राइट. द होल इनॉर्मस बार ऑफ चॉकलेट हैड डिसअपियर्ड कम्प्लीटली. उसने कहा तुम सही हो, पूरी इतनी बड़ी चॉकलेट बार वहाँ से गायब हो गई. It's on its way, cried Mr. Wonka. Mr. Wonka का वो अपने रास्ते में ही है. He dashed over to the other end of the room where the large television set was standing, and the others followed him. तो he dash mean ran quickly. वो तुरंत दौड़ कर गए. कहाँ गए? दूसरे रूम में गए जहाँ पे बहुत बड़ी टेलीविज़न सेट रखी हुई थी और उसके पीछे पीछे सभी लोग चले गए. Here it comes, he cried. उसने कहा देखियो ये आ गई. The television screen flickered and lit up. टेलीविजन स्क्रीन क्या हो रही है? शुक्ड अनस्टेडीली. फ्लिकर्ड मीन्स शुक, धीरे धीरे हिलना, शुक्ड करना. एंड लिट अप और लाइट आ गई उसमें. देन सडनली अ स्मॉल बार ऑफ चॉकलेट अपीयर्ड इन द मिडल ऑफ द स्क्रीन. और अचानक एक छोटी सी चॉकलेट स्क्रीन के बीच में आ गई. टेक इट शाउटेड मिस्टर वोंका ग्रोइंग मोर एंड मोर एक्साइटेड. मिस्टर वोंका ने कहा कि ले लो और वो बहुत एक्साइट थे. How can you take it? asked Mike TV laughing. Mike TV ने कहा हंसते हुए हम कैसे ले सकते हैं टीवी के अंदर से? It's just a picture on the TV screen. टीवी स्क्रीन के अंदर है तो हम कैसे ले सकते हैं? तो मिस्टर वोंका ने कहा चार्ली बकेट cried. मिस्टर वोंका grab it. मिस्टर वोंका ने चार्ली को कहा कि आप तुम ले लो और खा लो. चार्ली पुट आउट हिज हैंड एंड टच द स्क्रीन. चार्ली ने अपना हाथ निकाला और स्क्रीन को टच किया. एंड सडनली मिराक्युलसली मीन्स एकदम जादू हो गया जैसे. द बार ऑफ द चॉकलेट केम अवे इन हिज फिंगर्स. जैसे ही चार्ली ने टीवी स्क्रीन के अंदर हाथ डाला तो उसके हाथ में चॉकलेट आ गई. ही वॉज सो सरप्राइज ही नियरली ड्रॉप्ड इट. वो इतना सरप्राइज हो गया कि उसने चॉकलेट को नहीं गिराया और उसने ले लिया. Eat it, shouted Mr. Wonka. मिस्टर वोंका ने कहा खा लो इसे. इट विल बी डिलीशियस. बहुत डिलीशियस है ये, टेस्टी है. इट द सेम बार ओनली स्मॉलर, दैट्स ऑल. वो कहते हैं कि ये तो वही चॉकलेट है लेकिन थोड़ी छोटी है. इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, गैस्प्ड ग्रैंडपा जो. ग्रैंडपा जो ने कहा अरे वाह ये तो बहुत अच्छी है. इट्स मिरेकल, ये तो जादू है, चमत्कार है. जस्ट इमेजिन. Let's move to page number 68. Just imagine, cried Mr. Wonka. Mr. Wonka ने कहा कि just imagine करो कि when I start using this, जब मैं ऐसा करना start कर दूँगा तो you will be sitting at home. आप लोग घर पे बैठे होंगे watching television और आप घर पे टीवी देख रहे होंगे and suddenly a commercial will flash on the screen. और अचानक एक advertisement आपके स्क्रीन पे आएगा. ईट वोंकास चॉकलेट्स. तो मिस्टर वोंका क्या कहते हैं कि अब आप इमेजिन कीजिए, सोचिए कि अगर आप घर पे बैठे हैं, आपकी टेलीविज़न चल रही है और अचानक एक एडवर्टीज़मेंट आती है कि ईट वोंकास चॉकलेट्स.
वोंका की चॉकलेट खाइए, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ट्राई वन फॉर योर सेल्फ, और अपने लिए एक ट्राई कीजिए। और ऐसा हो जाए और टीवी स्क्रीन में से आप चॉकलेट निकाल के खाओ एंड यू सिंपली रीच आउट एंड टेक वन, और आप क्या करोगे, आप तुरंत जाओगे और उसमें से एक ले लोगे, एक चॉकलेट खा लोगे। हाउ अबाउट दैट ई, तो कैसा रहेगा, टेरिफिक, क्राइड ग्रैंडपा जो। ग्रैंडपा जो ने कहा टेरिफिक, खतरनाक, इट विल चेंज द वर्ल्ड, ये तो पूरी दुनिया को चेंज कर देगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन। मुझे आशा है कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। ओके, सो यू कैन ऑल्सो वॉच दिस स्टोरी इन हिंदी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ओके, you can see the story in YouTube also. Okay, so goodbye.